बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पांडे और आज हम 4 की चौकड़ी पर बात करने वाले हैं। 4 बड़ी खबरें जो जुड़ी हैं राजनीति, प्रशासन, समाज और आपके सीधा सरोकार से। तो चलिए बिना देर की रुक करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर, जहां देश में जनगणना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आए हैं, जहां एक गृह मंत्रालय ने नई प्रक्रिया को शुरुआत की तैयारी की है। दूसरी खबर है जहां हरियाणा में पशुपालन और डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में कुरुक्षेत्र में कड़ी से कड़ी सामने आए हैं। और उसके साथ ही तीसरी खबर हिमाचल से है, जहां हिमाचल प्रदेश में विकास का रफ्तार देने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स को काम किया जा रहा है, जिसमें बद्दी से एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट आ रहे हैं। चौथी खबर है जहां महिला आरक्षण को लेकर सियासत घमासान तेज हो गई है, जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं। आइए इन चारों खबरों को बात करते हैं विस्तार में। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां चंडीगढ़ में बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां एक मनजीत सिंह बराड़ ने बताया कि भारत में जनगणना को 2 चरणों में कार्रवाई की जाएगी, जिसके साथ ही पहली चरण 15 मई से होगी और 14 मई तक चलेगी। जिसके साथ उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में नागरिकता खुद भी अपनी जानकारी दर्ज करा सकती है, जिसके साथ यह कवादा गृह मंत्रालय के तहत कार्रवाई की जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। 30 डेज टाइम पीरियड दिता जाता है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਘਰ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਦੇ ਗੈਟ ਐਨ ਆਈਡੀਆ। ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਪੋਜ਼ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸੈਂਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਅਟੈਂਪਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੋਰमेशन कलेक्ट करने। मैडम मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला तो इसमें कास्ट का कॉलम कहीं नहीं दिख रहा है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, वो कॉलम क्यों मिस है इसमें? ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਜ਼ 1 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਸੂਚੀਕਰਨ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ, ਮਦਰ ਟੰਗ, ਕਾਸਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਬਰੂਅਰੀ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਡਮ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਈ ਐਂਡ ਤੇ ਜੂਨ ਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ 100 ਤੋਂ 150 ਘਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ BLO ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ BLO ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਰ ਪਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀਜ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ 30 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੈਂਸਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਜਾਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੈਪ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਵਾਟਰ ਬੋਟਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨੀ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਰਹਿ ਵੱਖ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ 2011 ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 34 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ 34 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। 33 ਹਾਂਜੀ 33 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਸੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਥੋੜੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਕੈਪਟ ਆਪਸ਼ਨਲ ਓਨਲੀ। ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਜਾਂ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ SC ST ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਰ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ BLO ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਿਊਮਰੇਟਰ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਉਹ ID ਕਾਰਡ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ QR ਕੋਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ डिटेल। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कुरुक्षेत्र में विश्व पशु चिकित्सक दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में धर्मवीर मिर्जापुर के साथ शिरकत की है, जिसके साथ ही विभाग के कामों को लेकर जानकारी दी है। उनका कहना है कि हरियाणा में फसल और दूध को जहर मुक्त बनाने के लिए पशुपालन और डेयरी के साथ ही विभाग लगातार काम कर रही है। इस दिशा में कई योजनाएं चलाई जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हाँ, सबसे पहले तो वर्ल्ड पशु चिकित्सक दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और देखिए आज जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हर साल के जो अप्रैल माह का अंतिम शनिवार जो होता है तो उसको ये पशु चिकित्सा दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है। और इस बार जो है ये 25 अप्रैल कल जो है ये दिवस मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। और 2000 में जो है जो पशु चिकित्सक जो संघ था उसने 2000 में इस डे की शुरुआत की थी। और जैसे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग डे जो लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं, तो उसी कड़ी के नाते जो है ये पशु चिकित्सक जो चिकित्सा दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। और इस बार का जो थीम है वो है पशु चिकित्सक भोजन एवं स्वास्थ्य के संरक्षक। इस थीम के साथ जो है पूरी दुनिया में जो है ये पशु चिकित्सा दिवस जो है वो मनाया जाएगा। और जैसे देखिए आजकल दिक्कत है कहीं ना कहीं दूध भी जो है शुद्ध दूध कहीं आज हर व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, तो उसके भी आज हमारे जो डॉक्टर हैं वेटरनरियन जो है पशु चिकित्सक जो है तो उनके कंधों पर यह जिम्मेवारी है कि वो हर व्यक्ति तक स्वच्छ दूध जो है वो पहुंचाने का काम करे और किसानों के साथ मिलकर खेत से थाली तक जो भोजन की जो प्रक्रिया है तो उसमें अपनी भूमिका निभाने का काम करें। और देखिए वैसे तो मैं कहूँ आज वर्ल्ड के यदि दूध की बात करें तो पूरे प्रति व्यक्ति दूध जो उपलब्धता है वो 328 ग्राम है पूरे वर्ल्ड में। और भारत की बात करूं तो 485 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्ध है। लेकिन हरियाणा के बारे में यदि बात करूं तो आज 1128 ग्राम प्रति व्यक्ति जो है वो दूध उपलब्धता जो है वो हरियाणा के हर वासी को मिल रही है। तो इसमें हमारे जो चिकित्सक हैं हमारे सरकार की जो नीतियां हैं जो डेयरी डेवलपमेंट के पशुधन जो बोर्ड है उसकी जो नीतियां योजनाएं हैं तो उनको ये श्रेय जाता है कि आज हरियाणा में पशुपालन जो है हमारी खासकर मुर्रा जो भैंस है वो आज पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और आज हम जो है क्योंकि गाय का दूध भी जो है यदि माता के दूध के बाद यदि किसी दूध को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तो देसी गाय का दूध को माना जाता है। और चिकित्सक भी जो है बच्चों के लिए इसको प्रेस्क्राइब इसको करते हैं। तो उसके लिए जो आज हमारा हरियाणा खासकर जो है हमारी जो भारतीय नस्लें हैं चाहे हरियाणवी नस्ल है हमारी थार पारकर नस्ल है हमारी साहिवाल नस्ल है हमारी गिर नस्ल है हमारी लाल सिंधी नस्ल है
बलाही नस्ल हैं, तो ये सारी नस्लें जो हैं, जो भारतीय नस्लें हैं, उनको बढ़ावा देने का काम जो है आज हमारे सरकार कर रही है। तो आज जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि किस प्रकार से आज जहर मुक्त खेती और उसके साथ जहर मुक्त दूध, क्योंकि खेती में जिस प्रकार से हम पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं चारे के नाते या उसके तूड़ी के भूसे के नाते जो है वो गाय या भैंस तक, वो पशु तक पहुंचता है और वो फिर दूध में से उसका निस्तरण होता है। तो दूध में भी वो अंश पाए जाते हैं और उसी के कारण जो आज नई नई जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती हैं। तो ये इन बीमारियों से बचे और दूध, स्वच्छ दूध जो है वो मिले, तो इसके लिए आज हमारा इस दिवस पर जो है ये संदेश जो है दिया जा रहा है। और आज हम हरियाणा में पशुओं को जो है मुंह खुर और गलघोटू की जो वैक्सीनेशन है वो, ताकि पशु को बीमारी ना हो, किसान को उसका नुकसान ना उठाना पड़े। तो पहले जबकि ये 2 बार अलग अलग वैक्सीनेशन होती थी, तो इस बार इसको जो दोनों बीमारियां उसकी एक ही वैक्सीन जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा, हमारे बोर्ड के द्वारा जो है वो विभाग के द्वारा वो लगाई जा रही है। और इसके साथ पशु पालकों को नुकसान से बचाने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी, दीनदयाल उपाध्याय जो है पशु बीमा योजना जो है वो भी जो है पूरे भारतवर्ष में चलाई जाए और हरियाणा में बहुत अच्छी तरह से किसानों को उस दर्द से बचाने के लिए, उस नुकसान से बचाने के लिए इस योजना को जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो आज तो मैं यही संदेश देना। हिमाचल के बद्दी में एक धून विधायक चौधरी राजकुमार ने कुल मिला के 66 करोड़ की लागत से बनने वाली शीतलपुर जनगणना को लेकर रोड शिलान्यास किया, जिसके साथ ही उनका कहना है कि 24 किलोमीटर लंबी इस सड़क से क्षेत्र में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और ये उनके पिता के अधूरे सपने का पूरा रखना जैसा है। बताएं। बहुत पुराना रोड था, शीतलपुर से जकात पैनल को चौड़ा करने के लिए 66 करोड़ की लागत से आपने शिलान्यास किया, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कि इस रोड की नई पत्थर जो है मेरे पूज्य पिताजी ने रखा था और उन्होंने इस गांव को फैसिलिटी देने का काम किया था। और अब जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, समय की मांग है कि रोड चौड़ा हो। हर बरसात में रोड बंद हो जाता था, तो इसको मैंने अपनी MLA प्रायोरिटी में डाल के जो है नाबार्ड के माध्यम से 66 करोड़ रुपये की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए स्वीकृत की है और इसको चौड़ा भी करेंगे और अच्छे सुंदर तरीके से इसकी अलाइनमेंट भी ठीक करेंगे। जहां अंदर को जाके बहुत मोड़ घेड़ है, पुलियां नहीं है, पानी जो है वो स्टॉर्म वाटर का इंतजाम नहीं था, वो सारा हम करेंगे। तो इससे पहले हमने यहाँ पुल लगाया, फिर आगे दासो माजरा में पुल लगाया, आगे चुनौडी का पुल लग रहा है। तो इन जो पार के गाँव हैं, 14-15 गाँव यहाँ से लेकर नालागढ़ तक पड़ते हैं, तो इनकी दशा खराब थी। जब बरसात होती थी तो बच्चे पार के पार और वार के वार जो है वो रहते थे। और यहाँ इवन यहाँ तक थी बात कि यहाँ पे लोग रिश्ते नहीं करते थे। जब से पुल लगे हैं और इस एरिया में ज़मीनें भी महंगी हो गई हैं, लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं, पर्यावरण बहुत अच्छा है। और अभी हिम चंडीगढ़ के नाम से बहुत बड़ा शहर जो है, रोड के साथ जो हमारा अंदर का एरिया, जंगल का एरिया है, सरकारी ज़मीन है, उसमें 7,000 बीघा ज़मीन जो है हाउसिंग के नाम सरकार ने कर दी है। तो उसका कार्य भी हम शीघ्र लगाएंगे। और यहाँ पे गौशाला का रोड की बात है, चाहे वो मुस्लिम बस्तियों के रोड की बात है, पानी की समस्या की बात है, सिंचाई की बात है। पहले सरसा नदी पे लिफ्ट के माध्यम से यहाँ सिंचाई होती थी। अब नई स्कीम जो है, हमने अभी नाबार्ड को आज ही हमने केस भेजा है, तो 2-4 महीने में उसकी सैंक्शन आएगी। तो इस वार के एरिया की जितनी छोटी छोटी ज़मीनें हैं, क्योंकि ये पशुपालक है हमारे लोग, और पशुओं के लिए भी सरकार ने दूध पे, मक्की पे, हमारी फसलों पे MSP जो है जारी की है। और इनका जो है वो आय बढ़े, उस चीज़ को लेके जो है सरकार काम कर रही है। उसके लिए हमने नई सिंचाई स्कीम भी जो है इनको नाबार्ड के माध्यम से हम दे रहे हैं। उसी से इनकी पेयजल की समस्या रहती है, क्योंकि इस एरिया में पानी की कमी है। सरसा के वार जो है वो नीचे ज़मीन में पानी नहीं है, पार से पानी आता है, तो वो लाइनें पहले टूट जाती थी, अब पुल के साथ वो लाइनें हम दे रहे हैं।
तो अभी इनकी मोटरों की दिक्कत थी, अभी मोटर हमने चेंज कराई है, इसका हम सुधार कर रहे हैं। लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए हमने पहले वर्ष में दिए, 2-2.5 करोड़ रुपए अगले वर्ष में दिए, अब 2 करोड़ 14 लाख रुपए अभी हमने और दिए हैं। तो जो पुरानी मशीनरी उसको हम चेंज करेंगे। और 100 हैंड पंप्स जो हैं दून क्षेत्र में हम लोग लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे पानी की कमी है उसको पूर्ण करने के लिए। लगभग 30-35 बड़े टैंक्स का हमने निर्माण किया है कि जहाँ पे छोटे टैंक से आबादी बढ़ गई है, पहले 10,000 लीटर का था, वहाँ 50,000 लीटर के जो है वो टैंक बना रहे हैं। इसी तरीके से हमारा नगर निगम का जो एरिया है, बद्दी साई रोड का सुधारीकरण का काम चला हुआ है। आपने देखा कि 40 फुट ऊंचे पोल हमने लगाए हैं और 24-24 फुट दोनों साइड जो है रोड और नाला बना के जो है तहाँ पार्किंग की व्यवस्था करेंगे और रोड को हम सुंदर बनाएंगे। आप जाके देखेंगे वर्धमान चौक हमने इसको चौड़ा करने का काम भी हमने स्टार्ट किया है। बुरुटीवाड़ा से वर्धमान तक का बाया सिक्का 27 करोड़ की लागत से जो है वो रोड हमारा बन रहा है। तो इसका स्टोन ले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बद्दी का टूर था उसमें कर दिया था, आज इसका शुभारंभ हमने किया है। तो लोगों को और इलाका वासियों को मैं इसकी बधाई देना चाहूँगा। और इसके बाद एक रोड इसके और साथ बनेगा जब ये कॉलोनी बन जाएगी, जैसे चंडीगढ़ की तर्ज पे 4 लेन जो है इस रोड को हम बनाने का हमारा प्रयास है सरकार का। और ये ऑलरेडी हमने प्रपोजल में डाल दिया है कि इसको 4 लेन हम करेंगे आने वाले समय में। बद्दी शीतलपुर की हालत रोड की काफी खस्ता है जी, इस बद्दी शीतलपुर जो 0 पॉइंट से लेके नेशनल हाईवे से लेके जो है इसी रोड में हमने मर्ज किया है। यही कंपनी उसका भी काम करेगी, साथ साथ इसी में वो काम हमने टेंडर किया है। महिला आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां हर्षवर्धन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इस नौटंकी को ड्रामा बताया है। जी आपको बता दें, इनको सवाल उठाया जा रहा है कि अगर बीजेपी महिलाओं को इतनी हितैषी को ना मिले तो 46 उम्र में किसके साथ ही महिला की पार्टी अध्यक्ष क्यों नहीं बनाई गई, जबकि कांग्रेस ने इस बिल को पहले भी पेश कर दिया था। देखिए खास रिपोर्ट। पूरे हिंदुस्तान में विशेष करके हिमाचल प्रदेश में जो ये ड्रामा कर रही है, नौटंकी कर रही है और ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए इनसे ज्यादा सुचिंतक कोई भी नहीं है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 1997 में इंट्रोड्यूस किया था और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। कांग्रेस ने बिल इंट्रोड्यूस किया था कि 1/3 महिलाओं को जो राज्यसभा है और लोकसभा में जो है वो जगह दी जाए, मगर उन्होंने इसका विरोध किया था। और अब दोबारा से 2023 में दोबारा से बिल पास हुआ, जबकि लोकसभा चुनाव जो है 2024 में हुए और चुनाव से ठीक पहले 2023 में इन्होंने महिला आरक्षण बिल को पास किया और ये कहा कि 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिलेगा और साथ में ये भी कहा कि 2029 की लोकसभा चुनाव में मिलेगा। अगर इनकी मंशा ठीक होती तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें इंट्रोड्यूस करते और उस महिला आरक्षण बिल को सभी राजनीतिक दलों ने, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ने भी सब सपोर्ट किया और सर्वसम्मति से और 2/3 बहुमत से ज्यादा वो पास हुआ और उसमें बिल का रूप लिया गया है। मगर उसमें इन्होंने खुद लिखा अगर इनकी मंशा ठीक होती तो 2024 के लोकसभा चुनाव में करते और जो 542 सीटें हैं उसमें ही 33% आरक्षण महिलाओं को देते, मगर इनकी मंशा ठीक नहीं थी। अब जब दोबारा से चुनाव 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण वेस्ट बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, केरला है और पौंडीचेरी में 5 राज्यों के चुनाव थे, उसके ठीक पहले और विशेष अधिवेशन बुलाया, स्पेशल सेशन जो है वो इस बिल को पास करने के लिए बुलाया इन्होंने और चुनाव को 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर देखते थे। बीजेपी को अपने आप में पता था कि इनके पास जो है लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं था, उसके बावजूद भी इन्होंने बिल को इंट्रोड्यूस किया और ये कह करके कि नंबर 1 पहले जो 2023 में बिल पास हुआ तो उसमें कहा था कि 2026-27 में जो सेंसस होगा उस आधार पे जो है वो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अब इनका स्टैंड दोबारा से क्यों चेंज हो गया? जब ये पहले बिल में 2023 में ये कहते थे कि नए सिरे से डिलिमिटेशन होगा और 2026-27 में जो नया डिलिमिटेशन हिंदुस्तान में होगा उस आधार पे 2029 में महिला आरक्षण बिल जो है और महिलाओं को कितनी संख्या सीटें दी जाएगी वो होगा। मगर चुनावी लोकसभा विधानसभा को देखते उन्होंने किया
और आप ड्रामा देखिए बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को स्टेज पे बिठाया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े नेता हैं, बिंदल जी है, जयराम जी हैं और लोग हैं, आज से पहले आपने महिलाओं को स्टेज क्यों नहीं दिया? और आज के बाद भी आप देख लेना, उस दिन के बाद महिलाओं को कभी भी स्टेज पे कुर्सी नहीं मिलेगी। मगर एक नौटंकी और ड्रामेबाज और एक सिंपैथी गेन करने के लिए इन्होंने जो है ये ड्रामेबाजी हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। सिर्फ भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की महिलाएं जानती है इनकी मंशा, इनको आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं थी। इन्होंने केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने की जो है 5 राज्यों में कोशिश की है और अच्छी तरह जानते थे ये बिल पास होने वाला नहीं है। आप ये मुझे बताएं कि रूरल डेवलपमेंट में, पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं को 33% जो है वो राजीव गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो है वो दिया है। शुरू से लेकर के कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से लेकर के महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हिंदुस्तान की पहली राष्ट्रपति जो है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। हिंदुस्तान की पहली जो मुख्यमंत्री कई राज्यों में बने वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। हिमाचल प्रदेश में हमारी जो महिलाएं जो हैं जिस प्रदेश की अध्यक्ष रही हैं, सबसे पहले सत्यवती डांग जो है वो 60s और 70s में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही हैं। विप्लव ठाकुर जी बनी, श्रीमती विद्या स्टोक्स बनी, प्रतिभा सिंह प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। बीजेपी वालों से मैं पूछना चाहूँगा कि एक भी महिला का नाम बताओ कि प्रदेश की अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की 1980 जब बीजेपी बनी उसके बाद 46 साल में बीजेपी ने एक भी प्रदेश की जो भाजपा की अध्यक्ष है क्यों नहीं बनाई है? अगर इतने इनको चिंता थी, महिलाओं की चिंता थी और इतने ये शुभचिंतक महिलाओं के बनते, आज तक इन्होंने बनाई है। इन्होंने हमने हमेशा से लेकर के जो है, चाहे वो मंत्री के रूप में, चाहे विधायक के रूप में, चाहे किसी और रूप में महिलाओं को लाने की कोशिश की है। तो ये सिर्फ एक नौटंकी और ड्रामा है भारतीय जनता पार्टी। वेस्ट बंगाल में जिस तरह से भारी इसी के साथ आज की 4 बड़ी चौकरों की पूरी यही होती है पूरी, और लोकल से लेकर प्रशासन और सीधा आपके सरोकार तक। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी अहम अपडेट के लिए। तो सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज़ पर।